Hello everyone, welcome to my channel. Let's complete the last exercise of chapter 13, that is exercise number 13.8. So in this video we are going to cover question number 6 to question number 10 of the exercise. Question number 6 is: a hemispherical tank is made up of an iron sheet 1 centimeter thick. There is a hemispherical tank. एक टैंक है जिसकी शेप है हेमीस्फीयर and it is made up of iron. This is made up of iron and the thickness of the iron sheet. This is the thickness. ये जो thickness है iron sheet की, this is given as 1 centimeter and the inner radius of this tank it is given as 1 meter. यहाँ से यहाँ तक का जो है inner radius it is 1 meter and the thickness is 1 centimeter. Okay. Find the volume of the iron which is used to make the tank. We want to find out the volume of the iron which is used in making the tank. इस टैंक को बनाने में कितना आयरन यूज हुआ उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है. So we want to find out the volume of the iron used in making the tank. Now if you look at this figure, there are two hemispheres. One is outer and another is inner. अगर मैं अंदर वाले हेमीस्फीयर का वॉल्यूम आउटर हेमीस्फीयर के वॉल्यूम से माइनस करूं, ध्यान से देखो, अगर अंदर वाले हेमीस्फीयर का वॉल्यूम आउटर हेमीस्फीयर से माइनस कर दें तो कौन सा पोर्शन रह जाएगा? ये आयरन शीट का. सो वी कैन फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ द आयरन शीट बाय सब्ट्रैक्टिंग दिस इंटरनल वॉल्यूम और इनर वॉल्यूम फ्रॉम द आउटर वॉल्यूम. अब उसके लिए मुझे दोनों की रेडियस चाहिए. वन रेडियस आई एम हैविंग विच इज़ 1 मीटर. सो inner radius of the tank is equal to 1 meter. Let's assume this as small r and convert this meter into centimeter क्योंकि दूसरा यूनिट सेंटीमीटर है. चलो इसको करने से पहले एक बार फॉर्मूला देख लेते हैं. Volume of sphere, we are going to use these two formulas in the remaining questions. Volume of sphere, if there is a sphere of radius r, the volume is 4 by 3 pi r cube, and if there is a hemisphere of radius r, the volume is 2 by 3 pi r cube. ठीक है, ये दो formulas use होंगे. And the volume, it is always having cubic units, तो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब या मिलीमीटर क्यूब, और अगर लीटर्स में करना है तो किलो लीटर, लीटर और मिलीलीटर. तो वॉल्यूम दो तरह से यूनिट्स में लिखा जा सकता है. नाउ इन दिस क्वेश्चन, inner radius of the tank is 1 meter, convert into centimeter, the thickness is 1 centimeter. So find out the outer radius. अगर मुझे outer radius निकालनी है तो वो यहाँ से लेके सेंटर से लेके यहाँ तक बनेगी. So which is 1 meter plus 1 centimeter. Okay. So outer radius of the tank, let's assume this as capital R. It is equal to inner radius plus thickness. So 100 centimeter plus 1 centimeter, which is 101 centimeter. Now the volume of the iron used to make the tank, it is equal to outer volume minus inner volume. अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? 2 by 3 pi r क्यूब आउटर के लिए कैपिटल R, इनर के लिए स्मॉल r, क्योंकि हमने वही सिंबल्स लिखे हैं. ओके, सो टेक 2 by 3 pi कॉमन. सो इन द ब्रैकेट वी आर लेफ्ट विद कैपिटल R क्यूब माइनस स्मॉल r क्यूब. सबकी वैल्यू पुट कर दो. पाई इज 22 by 7. दिस इज 101 सेंटीमीटर and small r is 100 centimeter. Put all the values. Now simplify to find out the answer. 101 cube is 10 lakh 30,301 minus 10 lakhs. Subtract these two numbers, you will get 30,301 and the units are centimeter cube. 2 into 22 44, 3 into 7 21. लिखते हैं इसे. So 44 upon 21 into 30,301 centimeter cube. Simplify this, you will get the answer in centimeter cube. अब क्वेश्चन जो है उसमें मीटर और सेंटीमीटर दोनों यूनिट्स यूज हो रहे हैं. सो यू कैन फाइंड आउट द आंसर आइदर इन सेंटीमीटर क्यूब और इन मीटर क्यूब. अगर क्वेश्चन में कुछ स्पेसिफिक लिखा होता है दैट यू नीड टू फाइंड आउट द आंसर इन मीटर क्यूब्स और इन सेंटीमीटर क्यूब, तब तो उसमें करने हैं. अदरवाइज आप जिसमें मर्जी फाइंड आउट कर दो, आइदर इन सेंटीमीटर क्यूब और इन मीटर क्यूब. अभी हम इसे यहीं लीव कर रहे हैं.
But if you want to convert centimeter cube into meter cube, then you need to divide this by 10 lakhs. अब ये कैसे होता है? देखो, अगर सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में करना है, we know that 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. अब क्यूब करना है, सो दोनों साइड का क्यूब कर दो. 100 सेंटीमीटर क्यूब, सो 1 का क्यूब 1, देन मीटर क्यूब इज इक्वल टू 100 का क्यूब 10 lakhs और सेंटीमीटर क्यूब. अब अगर आपको सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में करना है, इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट सेंटीमीटर क्यूब इनटू मीटर क्यूब, तो इस कन्वर्जन को देखो, सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में करोगे, देन यू नीड टू डिवाइड बाय 10 लाख. तो इसी वजह से हम 10 लाख से डिवाइड करते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. चलो एक बार फिर 6 देखते हैं. देयर इज़ अ टैंक जिसका इनर रेडियस गिवन था और थिकनेस गिवन थी, तो हमने आउटर रेडियस निकाला. देन द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज्ड, इट इज़ इक्वल टू आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम. इस फॉर्मूला में वैल्यूज़ डाली, सिंप्लीफाई किया और आंसर आ गया. ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये ध्यान से करना. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 इज फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर. 7th, find the volume of a sphere whose surface area is 154 centimeter square. We are given the surface area of a sphere and we want to find out its volume. Surface area given है. सबसे पहले surface area sphere का क्या होता है? 4 pi r square. It is given as 154 centimeter square. So हम लिख सकते हैं 4 pi r square is equal to 154. सिंप्लीफाई करोगे रेडियस आ जाएगा, और रेडियस आ जाएगा तो वॉल्यूम भी आ जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम के फॉर्मूला में सिर्फ जो रेडियस है वो हमें चाहिए होता है. ओके, सो इट इज़ 154 इंटू 7 और 4 और 22 यहाँ आ जाएंगे. कैंसिल कर दो जो कैंसिल होता है. सो आफ्टर कैंसिलेशन यू विल गेट 7 इंटू 7 अपॉन 4. सो r is equal to square root of 7 into 7 upon 4. The square root of the numerator is 7 and the square root of the denominator is 2. ठीक है, अब यूनिट्स लिख दो. Therefore radius it is equal to 7 upon 2 centimeters. So we got the radius. अब radius आ गया तो वॉल्यूम बहुत ईजी है. क्या किया हमने? The surface area is given. Use the formula for surface area of sphere. Find out the missing radius. Radius को find out किया तो ये आ गया 7/2. Now after this we want to find out the volume. So volume of the sphere, formula you know, 4/3 pi r cube. So volume of sphere it is equal to 4 upon 3 pi r cube. तो एक रेडियस है, वही चाहिए होता है हमें. रेडियस we have already got. So 4/3, 22/7. Radius is 7/2 into 7/2. It is radius cube. So write down 3 times centimeter cube. Cancel the numbers which are cancelable. ये कैंसिल हो गया 2, ये भी कैंसिल हुआ, फिर ये कैंसिल हुआ 11. So we are left with 11 into 7 into 7 upon 3. Okay. So after simplification you will get 539/3 centimeter cube, which is equal to 179.67 centimeter cube. ठीक है, इजी था क्वेश्चन. रेडियस निकाला और रेडियस के बाद हमने वॉल्यूम निकाल दिया. सो सरफेस एरिया वाज गिवन. सरफेस एरिया से आया हमारा रेडियस और रेडियस आने के बाद आ गया वॉल्यूम. सो वॉल्यूम इज 4/3 पाई r क्यूब. क्वेश्चन नंबर 8. अब 8th क्वेश्चन को ध्यान से समझना है. क्वेश्चन बहुत इजी है बट हमें क्लैरिटी होनी चाहिए क्या दिया हुआ है. अ डोम ऑफ अ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमीस्फीयर. लुक एट दिस फिगर. द डोम ऑफ दिस बिल्डिंग इज हेमीस्फेरिकल. ये जो डोम है ये हेमीस्फीयर है. ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है द डोम ऑफ अ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमीस्फीयर. ये देखो ये हेमीस्फीयर है. द क्वेश्चन इज from inside it was whitewashed at the cost of rupees 452.56. If the cost of whitewashing is rupees 2 per square meter, find the inside surface area. There is a building. The dome is in the shape of a hemisphere.
ये इसका डॉम हेमीस्फेरिकल है। अब इसको अंदर की तरफ से वाइट वॉश किया। जब वाइट वॉश किया तो टोटल कॉस्ट भी गिवन है और रेट भी गिवन है। वी वांट टू फाइंड आउट द इनसाइड surface area of this dome and also we want to find out the volume of the air which is inside the dome। तो सबसे पहला जो पार्ट है वो पहले करते हैं टू फाइंड आउट द इनसाइड सरफेस एरिया। क्वेश्चन क्लियर है? बिल्डिंग है, उसका डोम हेमीस्फेरिकल है, उसे अंदर से पेंट किया, टोटल कॉस्ट इज गिवन एंड रेट इज गिवन। नाउ द टोटल कॉस्ट of the whitewashing of inner surface area, it is 452 rupees and 56 paise and the rate is rupees 2 per meter square। 1 मीटर स्क्वायर को वाइट वॉश करने का जो कॉस्ट है या रेट है वो 2 रुपीज़ है और जो टोटल सरफेस एरिया पेंट हुआ उसकी ये कॉस्ट है। ठीक है, और मैंने पहले भी बताया था, याद करो, कि जब हम टोटल कॉस्ट को रेट से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है जिस काम को किया गया, जिसकी टोटल कॉस्ट दी जा रही है, वो काम क्या किया गया, वाइट वॉश किया। वाइट वॉश किसको किया, इनर सरफेस एरिया को। सो इफ़ यू डिवाइड टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इनर सरफेस एरिया बाय द रेट, then you will get inner surface area of the dome or hemispherical dome। फर्स्ट पार्ट यही है। सो फर्स्ट पार्ट inside surface area, so inside surface area it is equal to total cost upon rate। so write down the value of total cost and the rate also। अब जो यूनिट्स हैं एरिया के ये वाले आएंगे, मीटर स्क्वायर। सो राइट हेयर मीटर स्क्वायर, डिवाइड दीज टू नंबर्स, you will get 226.28 meter square। so we got inner surface area और inner कर्व्ड बोलो या टोटल बोलो, स्फीयर में सेम बात होती है, बट हेमीस्फीयर के अंदर टोटल और कर्व्ड अलग होते हैं। तो क्वेश्चन में जैसे लिखा आप उस फॉर्मेट में लिख दिया करो। हेयर दे हैव रिटन इनसाइड सरफेस एरिया, यू कैन ऑल्सो राइट इनसाइड कर्व्ड सरफेस एरिया, बोथ मीन्स द सेम इन दिस केस। ओके, तो ये हमारे पास आ गया। नाउ द सेकेंड पार्ट इज फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ द एयर। वॉल्यूम के लिए हमें चाहिए होता है रेडियस, और रेडियस हमारे पास नहीं है। सो द फर्स्ट वर्क इज टू फाइंड आउट द रेडियस। अब रेडियस के लिए हम इसी को यूज़ करेंगे कि इनसाइड सरफेस एरिया इज इक्वल टू 226.28। so we are going to use it to find out the radius। so write down this again, inner surface area, it is equal to 226.28 meter square। so 226.28 meter square। write down the formula for hemisphere। the formula for CSA of the hemisphere is 2 pi r square। so 2 pi r square it is equal to 226.28। यूनिट्स अभी हटा दो। सो हमने वैल्यू डाली 2 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। ओके, वैल्यू पुट करने के बाद शिफ्टिंग की 7 इंटू 226.28 अपॉन 2 इंटू 22। सिंप्लीफाई करो, दिस विल बी द आंसर। r square is 35.99। so r is equal to the square root of this number which is 5.99। okay, अब बेटा ये क्वेश्चन कुछ बुक्स में टोटल कॉस्ट दे रखी है 452.56 एंड इन सम ऑफ द बुक्स it is given as 498.96। मेथड रिमेन्स द सेम, मेथड बिल्कुल सेम है। आपके पास जो भी टोटल कॉस्ट दी है आप उसको रेट से डिवाइड करेंगे, यू विल गेट सरफेस एरिया। उस सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखो 2 पाई आर स्क्वायर एंड फाइंड आउट द रेडियस। अगर ये वैल्यू आपकी चेंज भी हो जाती है, इन सम ऑफ द बुक्स इट इज़ गिवन एज 498.96 एंड इन अदर बुक्स इट इज़ गिवन एज 452.56, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको मेन मेथड आना चाहिए। ठीक है, अगर मेथड क्लियर है तो डिजिट्स बदल भी जाएंगे, डजंट मैटर। तो अभी हम इससे करते हैं, आपके पास जो भी एडिशन होगा उसमें जो भी वैल्यू दी होंगी यू हैव टू डू अकॉर्डिंग टू दैट। सो वी गॉट रेडियस 5.99। यू कैन राइट डाउन दिस एज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 6। इट्स अप टू यू कि आप इसको अप्रॉक्सीमेटली 6 लिख दें, बिकॉज जब आप इसको राउंड ऑफ करोगे दिस इज़ 9, इट विल बी रिमूव्ड एंड दिस 9 विल बी इंक्रीज्ड बाय नंबर 1। तो जैसे ही इसमें 1 ऐड करोगे
तो 5.9 में यहाँ 1 ऐड हुआ, 9 + 1 10, तो 0 और 1 यहाँ आ गया 6। ठीक है, सो दिस कैन बी टेकन एज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 6 ऑल्सो। अगर आप चाहते हैं तो हम ऐसे कर भी सकते हैं, विच इज़ इक्वल टू 6.0। सो दोनों में से किसी से भी आंसर निकाल सकते हो। एक तो आ गया हमारा रेडियस। उसके बाद हम निकालते हैं जो हमारा क्वेश्चन था, वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम। वॉल्यूम ऑफ एयर विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द डोम। वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द डोम, एयर का उतना ही वॉल्यूम होगा जितना उस सॉलिड का है। सो इट इज़ हेमीस्फेरिकल डोम, सो इट इज़ 2/3 पाई आर क्यूब। सिंपल वैल्यूज़ डालो, आप 6 से भी कर सकते हो, 5.99 से भी। सो आई एम डूइंग बाय 6, थोड़ा सा इजी हो जाएगा, बाकी नहीं तो 5.99 से कर लो। 6 × 6 × 6 और यूनिट्स थे मीटर क्यूब। कैंसिल कुछ होता है तो कर दो, नहीं तो सिंप्लीफाई कर लो। ओके, सो सिंप्लीफाई दिस। सो ऑन सिंप्लीफिकेशन यू विल गेट 3168/7 मीटर क्यूब, विच मीन्स 452.57 मीटर क्यूब। तो अगर आपकी बुक्स में टोटल कॉस्ट कुछ अलग दे रखी है, आप उसी को यूज़ करो। यूज़ द सेम मेथड, find out the inner surface area, then find out the radius, and after that find out the volume of the air inside the dome. It is equal to the volume of the hemisphere. So it is 2/3 pi r cube. Put all the values and find out the answer. दो क्वेश्चन रह गए, 9th and 10th. Let's do question number 9. क्वेश्चन नंबर 9 बहुत मज़ेदार सा क्वेश्चन है। देखो मैंने 27 स्मॉल स्फीयर्स ड्रॉ किए। The question is 27 solid iron spheres. There are 27 small iron spheres. आयरन से बने हुए हैं सारे। Each of radius r, हर एक का रेडियस है r और हर एक का सरफेस एरिया है s। मतलब एक स्फीयर, स्मॉल स्फीयर का रेडियस r और सरफेस एरिया s, और ऐसे 27 स्फीयर्स हैं। They are melted to form a sphere with surface area s dash. इन सबको मेल्ट किया और इनसे एक बिग स्फीयर बना, एंड द सरफेस एरिया ऑफ दिस बिग स्फीयर इज एस डैश। ये सिंबल लगाओ, वी रीड इट एज एस डैश। नाउ द फर्स्ट पार्ट इज फाइंड आउट द रेडियस आर डैश ऑफ द न्यू स्फीयर। द रेडियस इज आर डैश फॉर दिस न्यू बिग स्फीयर एंड द सरफेस एरिया इज एस डैश। वी वॉन्ट टू फाइंड आउट दिस रेडियस। ओके, रिमेंबर दैट जब भी किसी एक सॉलिड चीज़ को मेल्ट करके दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, दिस इज़ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इन सबको मेल्ट किया और एक बिग स्फीयर बना दिया, तो इसमें वॉल्यूम सेम रहता है। द वॉल्यूम ऑफ 27 स्मॉल स्फीयर्स विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द बिग स्फीयर, और यू कैन से द वॉल्यूम ऑफ आयरन इन दीज स्फीयर्स, आयरन से बने हुए, इट इज़ इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ आयरन इन दिस बिग स्फीयर। तो वॉल्यूम को हम कंपेयर कर सकते हैं, एंड आफ्टर कंपेयरिंग द वॉल्यूम वी कैन ईजिली फाइंड आउट द रेडियस आर डैश। So let's find out this r dash. First part, write down radius of one small sphere. Radius of one small sphere is r, surface area is s, radius of big sphere is r dash, and surface area is s dash. Now according to the question, volume of big sphere, it is equal to volume of 27 small spheres. So that can be written as 27 into volume of one small sphere. ठीक है, अब स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई, रेडियस है इसका r डैश। सो राइट हियर r डैश होल क्यूब, ध्यान से लिखने हैं, सिंबल्स ध्यान से लगाने हैं। इट इज़ इक्वल टू 27 इंटू 4/3 पाई, द रेडियस ऑफ वन स्मॉल स्फीयर इज r, सो इट इज़ r क्यूब। अब देखो दोनों साइड अगर सेम कोई नंबर्स हैं तो वो कैंसिल कर दो, इजी हो जाएगा। 4/3 गेट्स कैंसल्ड, पाई ऑल्सो गेट्स कैंसल्ड, सो वी गेट r डैश क्यूब, इट इज़ इक्वल टू 27 r क्यूब। ठीक है, तो r डैश हो जाएगा दूसरी साइड का क्यूब रूट ऑफ 27 r क्यूब। Now what is cube root of 27? It is 3.
3 into 3 into 3 is 27. So cube root of 27 is 3 और r क्यूब का क्यूब रूट दिस इज r. ठीक है, r क्यूब का अगर क्यूब रूट निकालना है तो देखो ये कैसे आता है, ये इस तरह होता है. दिस कैन बी रिटन एज r इंटू r इंटू r और क्यूब रूट के लिए हम इस पूरे ग्रुप में से एक को बाहर लिखते हैं. सो इट बिकम्स r. ठीक है, सो क्यूब रूट इज 3r. So we got the first answer, r dash is equal to 3r. So the radius of the big sphere, it is equal to 3 times the radius of one small sphere. तो ये तो हो गया हमारा first part. Now the second part is find the ratio of s and s dash. s और s dash की रेशो निकालनी है आपने, मीन्स सरफेस एरिया की रेशो. ये तो फर्स्ट आंसर हो गया हमारा. अब सेकेंड पार्ट में हमें रेशो फाइंड आउट करनी है, देखते हैं किसकी है. So for the second part, we need to find out the ratio of s and s dash. So write down for the second part, required ratio is equal to s upon s dash. s क्या चीज़ थी, सरफेस एरिया ऑफ वन स्मॉल स्फीयर, और s डैश क्या है, सरफेस एरिया ऑफ बिग स्फीयर. तो ये एक स्फीयर का और ये बिग स्फीयर, ये स्मॉल का ये बिग का. अब फॉर्मूला बनता है 4 पाई आर स्क्वायर. रेडियस बस ध्यान से पुट करना है, ये बन गया आर स्क्वायर और इसका रेडियस था 4 पाई आर डैश स्क्वायर. ये तो फॉर्मूलाज ही हैं, अलग से लिखने की ज़रूरत ही नहीं. 4 गेट्स कैंसल्ड, पाई गेट्स कैंसल्ड, सो वी गेट आर स्क्वायर अपॉन आर डैश स्क्वायर. अभी हमने रेडियस फाइंड आउट किया था आर डैश. आर डैश कितना आया था, 3 टाइम्स आर. तो ये वैल्यू अब हम पुट करेंगे. सो इट इज़ इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन 3r होल स्क्वायर. सिंप्लीफाई कर दो, आंसर आ जाएगा आर स्क्वायर अपॉन 9r स्क्वायर. आर स्क्वायर कैंसिल कर दो, सो वी गेट 1/9. और आप रेशो निकाल रहे हो तो फ्रैक्शन की बजाय रेशो की फॉर्म में लिख दो, 1:9. सो रिक्वायर्ड रेशो, देयरफॉर required ratio is equal to 1:9. or you can write ratio that is s is to s dash, कोई भी लिख दो चाहे required या ये, it is equal to 1:9. तो ये आपका रेशो फॉर्मेट में आंसर आ गया. क्या था, we were having 27 small spheres made up of iron. आयरन से बने हुए स्फीयर्स हैं छोटे छोटे 27. इनको मेल्ट करके एक बिग स्फीयर बनाया. The radius of one sphere was given and the surface area was also given. और इसका radius r dash, surface area s dash. दोनों के वॉल्यूम सेम रहेंगे. वॉल्यूम ऑफ द बिग स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 27 स्मॉल स्फीयर्स. कंपेयर किया वॉल्यूम्स को, जो कैंसिल होता था कैंसिल किया और r dash का आंसर आ गया. द सेकेंड पार्ट वॉज टू फाइंड आउट द रेशियो s अपॉन s dash. सिंपल फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला में वैल्यू डाली r dash की एंड द आंसर कम्स आउट टू बी 1:9. अब 10th क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, फटाफट से हो जाएगा. देखना, मुझसे पहले आप कर लोगे और गारंटेड आप कर लोगे. देयर इज़ अ कैप्सूल ऑफ मेडिसिन इन द शेप ऑफ अ स्फीयर. एक छोटा सा कैप्सूल है, स्फेरिकल कैप्सूल. ठीक है, घर में होते हैं ना कैप्सूल्स, आप चेक कर सकते हो, स्फेरिकल भी होते हैं और शेप्स के भी होते हैं. तो ये स्फेरिकल कैप्सूल है. ठीक है, तो स्फेरिकल शेप का एक कैप्सूल है. पुदीन हरा आता है स्फेरिकल शेप कैप्सूल में. ठीक है, आपने कभी देखा हो तो देखो, ग्रीन कलर का होता है, लिक्विड फिल्ड होता है उसके अंदर. सो द डायमीटर इज गिवन एज 3.5 मिलीमीटर. बहुत छोटा सा है, मिलीमीटर में दे रखा है. तो रेडियस विल बी 3.5/2 मिलीमीटर. ठीक है, अब इसका डेसिमल रिमूव कर दिया. सो वी हैव रिमूव द डेसिमल, कैंसिल आउट दिस 7/4. सो वी गेट 7/4 मिलीमीटर. अब ये मिलीमीटर में होगा, सेंटीमीटर में होगा तो कैप्सूल ही बहुत बड़ा हो जाएगा, तो कंज्यूम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. सो इट इज़ इन मिलीमीटर्स. सोच के देखो ज़रा, अगर सेंटीमीटर में हुआ कैप्सूल, इतना बड़ा कैसे खा सकेंगे, नहीं खा सकते ना. सो इट इज़ इन मिलीमीटर्स. सो रेडियस इज 7/4 मिलीमीटर. नाउ द क्वेश्चन इज हाउ मच मेडिसिन इन मिलीमीटर क्यूब इज़ नीडेड टू फिल दिस कैप्सूल. इस कैप्सूल को फिल करने के लिए कितनी मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है.
सो उसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। सो मेडिसिन नीडेड टू फिल द कैप्सूल इज 4/3 पाई आर क्यूब। वैल्यूज पुट करो और आंसर निकाल दो, और मुझे पता है मुझसे पहले आप कर लोगे फटाफट से। 22/7, 7/4, 7/4, 7/4, और आंसर आएगा मिलीमीटर क्यूब में। कैंसिल करो जो कैंसिल होता है एंड फाइंड आउट द फाइनल आंसर। सो जब कैंसिल करोगे 7 कैंसिल होगा, 4 होगा और आएगा 1078/48 मिलीमीटर क्यूब। सिंप्लीफाई दिस, it will be 22.46 मिलीमीटर क्यूब अप्रॉक्सीमेट। राउंड ऑफ किया मैंने 2 प्लेसेस तक। ओके, सो इट इज अप्रॉक्सीमेटली 22.46 millimeter cube. So the medicine required to fill the capsule is equal to 22.46 millimeter cube. तो ये एक्सरसाइज हो गई ओवर। चैप्टर कंप्लीटेड। चैप्टर 13 हो गया। बहुत सिंपल है। पहले 4 एक्सरसाइज सरफेस एरिया से रिलेटेड और लास्ट की 4 एक्सरसाइज वॉल्यूम से रिलेटेड, और वॉल्यूम के क्वेश्चन ज़्यादा इजी हैं, है ना। तो बहुत अच्छे से चैप्टर रिवाइज करना है। इफ़ एनी क्वेश्चन इज़ नॉट क्लियर टू यू, प्लीज़ वॉच द वीडियो अगेन। सारे वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं 13.1 से लेके 13.8 तक। तो अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आती है, आप वीडियो का वो पोर्शन या पूरा वीडियो दोबारा देख सकते हो। और अगर फिर भी कुछ क्लियर ना हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी उसे। ठीक है। सो चैप्टर कंप्लीट हो गया, वीडियो कंप्लीट हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।